Friends, it's me, Vashidayu. Today we will discuss chapter number 10 of part 1 regarding to the topic trigonometry. Okay, in chapter number 10, the first topic is distance formula. Okay, if you have 2 points P with the coordinates x1, y1 and Q with the coordinates x2, y2, then the distance between these 2 points, distance between the difference of abscissa with square plus difference between the ordinate y2 minus y1. So this is the distance formula. Question can be asked 1, 2, 3, 4. If this is a P and Q, then what is the distance between these 2 points? So according to this formula, you can find out the distance between these 2 points. Okay, you can minus the abscissa x component of these 2 points. Either you can make 1 minus 3 or 3 minus 1. Both will give you the same result due to this square. ये जो स्क्वायर है, आप x2 minus x1 करें या x1 minus x2 करें, तो अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा स्क्वायर की वजह से. ओके, 1 minus 3 और 3 minus 1. So 3 minus 1 square plus 4 minus 2 square. ओके, 2 द स्क्वायर ऑफ 2. जब आप 3 में एक माइनस करेंगे 3 में से, तो आपके पास 2 बचेगा, तो स्क्वायर आपके पास 4 हो गया. अगेन 4 minus 2 2, 2 का स्क्वायर 4. So this is 8. You can write it 4 multiply 2 or 2 square root 2. So this is the right option. Or you can say that the distance between P and Q is 2 times square root 2. It can also be written as square root 8. Okay student, the next topic is I will teach you about allied angle. Okay, allied angle. What is allied angle? It is basically multiple of pi by 2 and plus minus theta. Here n may be positive, or you can say that you can divide it into 2 parts, one for even, one for odd. Okay, even or odd. Okay student, before this I want to explain co-ratio. Sin theta converted cos theta and cos theta converted sin theta. Tan theta convert cot theta, cot theta convert tan theta. Secant theta convert cosec theta and cosec theta convert into secant theta. You will use co-ratio when n is equal to odd. Okay, when odd multiple of pi by 2 you will use, then you will use co-ratio. Sin converted into cos theta, cos converted into sin theta, for example. And few result also I want to deliver to you that pi by 2 minus theta, first quadrant, pi by 2 plus theta and pi minus theta, both are second quadrant. Okay, and pi plus theta and 3 pi
minus 3 pi by 2 minus theta. So this is third quadrant, and 2 pi minus theta and 3 pi by 2 plus theta. This angle is in fourth quadrant. Okay, student. Now, if there is a sine 3 pi by 2 plus theta, then what will be the value of this trigonometric function? Okay, as I told you, if n is odd, then we will use co-ratio. Sine will convert into cos theta, that is cos theta, whatever the angle this is. This will be neglected. Okay, now I want to find out that कि ये जो एंगल है आपके पास ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ओके, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाएं. आप देखें पाई बाई 2 के साथ क्या है, 3 का मल्टीपल है. इसका मतलब ये हुआ ये पाई बाई 2 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम. अब अगर आप इसमें थीटा ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन थी है वो बेसिकली नेगेटिव होता है. ये मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, आपने इस एंगल को देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मैं बता भी चुका हूं आपको. तो दैट इज 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन देखना है. साइन है, सेकंड है, कोसिक है, टेन है, कोट है, जो भी होगा. अब होता क्या है, आप ये देखते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और अगला इस फंक्शन को देख लेते हैं, जो कि मिस्टेक है आपकी, क्योंकि cos तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, लेकिन आपने cos को देखना नहीं है, आपने इस एंगल के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको देखना है. तो इस एंगल के साथ आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन. सो इट मीन साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए यहां पे आप क्या लगाएंगे, माइनस कॉस थीटा. तो ये आपने कोरेशो का इस्तेमाल कर लिया. अब आप देखिए, अगर मैं यही एग्जांपल मैं कोट करना चाहूं किसी और के लिए, लेट्स सपोज टेक 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा. अब आप देखिए अब भी क्या है, पाई बाई 2 के साथ क्या मल्टीपल 7, दैट इज ओल्ड मल्टीपल. अगर ये ओल्ड मल्टीपल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोरेशो हम यूज करेंगे. अब कोरेशो कैसे यूज करेंगे जी, आपने इस एंगल को निगलेक्ट कर देना है, जो भी यहाँ पे एंगल होगा आपने उसको कंसीडर कर लेना है. तो ये आ गया आपके पास ऑड की वजह से कॉट थीटा. पहला स्टेप तो ये हो गया. आपने ये देखा कि ऑड मल्टीपल है, ये इवन है. अगर ऑड है तो कोरेशो में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया इस एंगल को देखते हुए, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है ये और बात है. अच्छा, अब आप देखिए 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा है. अब 7 पाई बाई 2 के साथ क्या है, 7. अब आपने क्या करना है, 7 को 4 में डिवाइड करना. क्या बचा नीचे, रिमाइंडर कितना बचा, 3. तो जो रिमाइंडर है ना 3, अब उसको देखिए आप, इस 7 की जगह 3 कंसीडर करें, 3 पाई बाई 2. तो इसका मतलब आप यहाँ पे आ गए, इस लाइन के ऊपर आ गए, 3 पाई बाई 2. अब आप देखिए थीटा ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है. अगर थीटा ऐड हुआ तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर थीटा माइनस हुआ तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ अगर ये माइनस हो रहा है तो आप किस क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड में. थर्ड में टेन क्या होता है, थर्ड में टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपने क्या किया कि यहाँ पे पॉजिटिव भी लगा दिया. अब आप देखें एक और एग्जांपल 750 डिग्री, लेट्स सपोज. तो अगर मैं इसके साथ नेगेटिव भी लगा दूं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टेन के साथ जो नेगेटिव होता है वो बाहर फेंक देता है. चलिए ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. सिर्फ कॉस आपके पास ऐसा फंक्शन है क्योंकि कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा कर देता है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है जी, सेकेंड. सेकेंड माइनस थीटा भी क्या हो जाता है, सेकेंड थीटा.
बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देंगे। लाइक अगर आपके पास साइन माइनस थीटा है तो इट विल बिकम माइनस साइन थीटा, और इसी तरह आपके पास जो बाकी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी बाहर। सिर्फ ये आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव आपके पास बाहर आ गया, पीछे क्या रहेगा टेन। मैं 750 को मैं लिखूंगा 720 प्लस 30। मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं 90 के मल्टीपल में यूजिंग I want to use then definition of right angle. Okay, तो 720 आ गया। अगर आप इसको नहीं ब्रेक कर सकते तो आपके पास एक सिंपल सा हल है। बेसिकली जो भी क्वांटिटी होती है आपको उसको 90 पे डिवाइड करना होता है। तो 90 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें प्लस 30 या प्लस माइनस 30 होगा, प्लस 60 में माइनस 60 होगा, और 90 नहीं हो सकता। ये जो थीटा होता है ना, ये वाला थीटा या ये वाला थीटा, ये भी लेस देन 90 डिग्री होता है। इट इज नॉट मोर देन 90 डिग्री। अब आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे आ गया आपके पास, आपने देखा कि ये नॉट मोर देन 90 डिग्री है, 30 डिग्री है। 720 ओके, माइनस 10 720 है। आप इसको लिखें 90 का मल्टीपल, भूल जाए 0 है, 8 9 72, तो ये आपका हो गया 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए यहाँ पे इवन मल्टीपल आ गया। मैंने कितने केस बताए थे, एक ऑड और दूसरा इवन। ऑड के लिए आपने को रेशो का इस्तेमाल करना है, लेकिन इवन के लिए आपने को रेशो का इस्तेमाल नहीं करना। इवन में जो भी फंक्शन आपके पास होगा आपने एज इट इज उसको लिख देना है। तो देखिए इवन में यहाँ पे कौन सा फंक्शन है जी, 10 है, तो आपने ये वाला एंगल लिखना है। तो ये हो गया माइनस एज इट इज 10 30 डिग्री। अब आप देखिए 8 मल्टीप्लाई 90, तो जब 8 मल्टीप्लाई 90 आ गया तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई पाई बाई 2। अब इस लाइन पे यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 हो गया, 4 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 हो गया, 8 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 हो गया, 4 का जो भी डिवाइजर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, या 4 का जो मल्टीपल होगा वो भी यहाँ पे इस लाइन पे आएगा। अब आप देखिए 4 का मल्टीपल है 8, 4 बाई 2 लिखा जा सकता है इसको, इसका मतलब आप यहाँ पे है। और थीटा, अब इस लाइन पे अगर थीटा ऐड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आप देखिए थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसका मतलब आप किस क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में। तो मुझे ये बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है, कोई भी नहीं होता। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो इट मीन्स ये आपके पास पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। तो आपने क्या किया, एक बड़े एंगल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक छोटे एंगल में। तो ये था अलाइड एंगल। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स। अभी यहाँ पे जो एंगल की टाइप मैंने लिखी है वो है जी थीटा बाय एन। इस टाइप पे जो आपके पास एंगल होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें साइन थीटा। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट आपके जहन में डाल रहा हूँ, जैसे मतलब एंट्री टेस्ट में आता है क्वेश्चन और बच्चों को आइडिया नहीं होता कि किस टाइप का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ फॉर वन 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री, क्या है इसकी वैल्यू। अब आप कहेंगे जी हमें तो sin 15 या cos 15 की वैल्यू का पता ही नहीं है। तो इसमें ये बेसिकली क्या है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ पड़ा है, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अगर आप देखें यहाँ पे हाफ एंगल है थीटा बाय 2, यहाँ पे क्या है उसका डबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ दैट इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, तो विच इज इक्वल टू 1/2। तो आपको इसका रिजल्ट मिल गया। ये जो मैंने रिजल्ट लिखे हैं सारे के सारे, इन रिजल्ट को इस्तेमाल करके काफी दफा एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आपने इन रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए अब जितने भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपने हाफ एंगल का या इस टाइप का जो एंगल है आपके पास उसको इस्तेमाल लाजमी करना है। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 tan 15 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर
15 डिग्री। तो देखें ये भी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके पास इसकी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि आपने टेबल में मैंने आपको 15 डिग्री की वैल्यू बताई है, कैलकुलेटर के बगैर आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आदत हो गई है ना, अब हर स्टूडेंट कैलकुलेटर को यूज करता है। तो कोशिश किया करें कैलकुलेटर से अवॉइड किया करें। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करना है तो अवॉइड करें कैलकुलेटर से। तो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो अपने जहन में रखिए, बेशक उसके एक नोट्स बना लीजिए अपने लिए। 2 tan 15 डिग्री, तो ये भी रिजल्ट किसके बराबर है जी, साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया, ये दैट इज इक्वल टू 1/। ओके, अब आप देखें इनको आपस में भी कंपेयर करके आपको रिजल्ट दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कंसीडर कर लूं, अब सेकंड पार्ट, cos स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, then you can see that this result is equal to cos theta. So it means this is cos 45 degree, that is equal to 1 over square root 2. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे 22.5 लिख दूं या 15 डिग्री लिख दूं तब भी आपके पास ये रिजल्ट, यहाँ से भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं और यहाँ से भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप मजीद क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेट्स सपोज कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 होता चला गया डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू यहाँ से भी निकाली जा सकती है, इसी तरह sin स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। ओके, द नेक्स्ट रिजल्ट tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको भी आप अच्छे से मेमोराइज करें। इसी तरह आपके पास cot थीटा के हवाले से रिजल्ट है, उसको भी आप मेमोराइज कर लें। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जस्ट tan 22.5 डिग्री इसके बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशन दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस cos 45 डिग्री और 1 प्लस cos 45 डिग्री, दैट इज ऑब्वियसली 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह ये बाकी जो आपके पास मैंने रिजल्ट लिखे हैं, स्टूडेंट इसको मेमोराइज कीजिएगा, ये आपके लिए बड़े फ्रूटफुल होंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ दैट इज डबल एंगल आइडेंटिटी। दैट इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये भी देखें आप, इसी के मुताबिक ही है रिजल्ट। ये हाफ एंगल, ये भी डबल एंगल आइडेंटिटी ही कहलाया जा सकता है। तो इसी तरह आप cos 2 थीटा का रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और अगर आप sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप थीटा बाय 2 के लिहाज से था। अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अब जब sin और cos आ गया आपके पास, तो इसी तरह आप tan डबल एंगल भी निकाल सकते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan के लिए डबल एंगल, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपैरिजन कर सकते हैं इसका। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे 2 थीटा आ गया, यहाँ पे थीटा बाय 2 था तो इसका थीटा हो जाएगा। ओके, ये तो था डबल एंगल। अब हाफ एंगल ऑलरेडी आप निकाल चुके यहाँ से। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, हाफ एंगल दैट इज, अगर आपके पास cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा
डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप ये स्क्वायर रूट भी खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास आ गया प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह साइन थीटा बाई 2, उसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा कॉस के साथ, अदरवाइज आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ये टर्म उधर चली जाएगी, कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। और टेन के लिए आपके पास क्या हो गया जी, साइन ओवर कॉस होता है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। प्लस माइनस लगाना चाहते लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो भी कोई मसला नहीं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल आप देखिए कि साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा जा सकता है। अब यहां से देखिए स्टूडेंट क्या क्या सवाल निकलते हैं। साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन साइन अल्फा जो है इज इक्वल टू व्हाट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, साइन अल्फा इन टर्म ऑफ ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो देखें साइन 3 अल्फा का जो आपके पास फार्मूला है वो देख लें। तो वो आपके पास हो गया 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। एक तो ये आपके पास आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, साइन अल्फा किसके बराबर है। अब आप देखें साइन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं जी, इसको उधर ले जाइए, तो ये आपके पास हो गया साइन 3 अल्फा प्लस 4 साइन क्यूब अल्फा, और जो साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये वाला जो चीज है। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया आपसे। अब आप देखिए साइन क्यूब, तो अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो ये आपके पास हो गया 3 साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा, और साथ ही आप कर दें जी 4 को डिवाइड। जब ये क्वांटिटी उधर गई, ये पॉजिटिव की हो गई, ये इधर आई तो ये नेगेटिव की हो गई। ओके, 3 साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। अब आप देखें इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो दूसरी साइड में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप 1/4 कर दें, तो ये साइन क्यूब अल्फा। ये तीनों क्वेश्चन अपेयर हो चुके हैं एंट्री टेस्ट एग्जाम में, तो ये ना सिर्फ साइन के लिए बल्कि कॉस के लिए भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टेन 3 अल्फा का फार्मूला भी आपके पास है, तो आपने बड़े अच्छे से याद भी किया होगा एफएससी में। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, लेट्स सपोज के मतलब पहले भी मैंने आपको बताया हाफ एंगल के हवाले से, अभी भी आप देखें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की बजाय हम लिख देते हैं लेट्स सपोज जी 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो स्टूडेंट आपको अब ये रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता तो आप ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते सिंपली। तो मतलब आप निकालेंगे किसी और भी टेक्निक से निकाल सकते हैं इसको, लेकिन वो बहुत लेंथी टेक्निक है, क्योंकि हमने एंटी टेस्ट में अपने टाइम को सेव करना होता है। इसलिए जो जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हैं वो मैं अपने लेक्चर में क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप मेरा लेक्चर को अच्छे से देख लेंगे, और इसके साथ जो मेरे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं स्पेशली सेकंड ईयर के जितने भी है टॉपिक, सारे मैंने वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होंगे। और इंशाल्लाह सून मैं जितने भी ई कैट के पेपर है वो भी सॉल्व करके अपलोड करूँगा वहाँ पे। तो अब आप देखें, अगर आपको किसी को ये रिजल्ट पिक कर जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर वो पिक नहीं कर पाएगा तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, फिर आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। एनीवे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ऐसा एंगल आया होगा जिसमें हाफ क्वांटिटी होगी, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें और मुकम्मल बन रहा हो, तो आप फिर इन्हीं एंगल को ध्यान में रखिएगा, हाफ एंगल, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल को। अब आप देखिए कि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा
2 मल्टीप्लाई 22.5 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। और ये वैल्यूज है, बहुत सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है। साइन 15 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 75 डिग्री किसके बराबर होता है, और साइन cos 15 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 15 डिग्री इक्वल टू साइन 75 डिग्री। अच्छा, ये रिजल्ट अब आप इस पर डाउट होगा कि साइन 15 डिग्री डायरेक्ट cos 75 डिग्री के बराबर कैसे लिख दिया। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सही से सुना है और देखा है तो उसमें मैंने ये क्लियर किया था कि साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी तरह मैंने कहा था कि टेन और कॉट सीकट और कॉसेक का रिजल्ट भी आपस में बराबर होगा। तो चैप्टर नंबर 9 में भी ये मैंने क्लियर किया हुआ है। तो इसलिए जो cos 15 डिग्री है वो sin 75 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 15 प्लस 75 90 डिग्री, और इसी तरह tan 15 प्लस 75 90 डिग्री है, इसलिए tan अल्फा इज इक्वल टू cot बीटा। तो ये रिजल्ट स्टूडेंट आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि काफी दफा ये रिजल्ट पूछे जा चुके हैं पेपर में, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बल्कि एंट्रेंस एग्जाम में। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द रूल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्ट सम टू द डिफरेंस। आप देखें, ये आपके पास प्रोडक्ट है और ये सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड फ्रॉम सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट, सम है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये डिफरेंस है ये भी आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये साइन पी माइनस साइन क्यू। ओके, तो मैं एक एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। लेट्स सपोज कि आपके पास आ जाता है साइन 15 डिग्री और साइन 45 डिग्री, वो कहते हैं जी इसको सम या डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखें फार्मूला कौन सा है, साइन साइन। आपने प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना है, तो देखें यहाँ पे स्टार्ट में -2 है, तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे -2 है, नहीं है, तो आप -2 में इसको कन्वर्ट कर तो मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो आप देखिए -1/2। ओके, now using this formula, this is equal to what, cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta. So this is cos alpha plus beta, that is 60 degree minus cos alpha minus beta, तो 15 minus 45 that is minus 30, लेकिन cos नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, इसलिए cos 30 डिग्री। तो ये आपके पास डिफरेंस में आ गया। ओके, अब आप देखें एक एग्जांपल मैं यहां से कोट कर देता हूं, फ्रॉम सम एंड डिफरेंस टू द प्रोडक्ट। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि जी cos x प्लस cos y इज इक्वल टू व्हाट, और आपको कहा जाता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, व्हाट इज द प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सम ऑफ cos x प्लस cos y। तो आप देखिए cos x प्लस cos y आपके पास किसके बराबर है, 2 times cos p plus q by 2 cos p minus q by 2. Okay, this is basically 2 times cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2. So this is the product form. तो किसी भी दो एंगल्स के लिए आपके पास ये रिजल्ट पूछा जा सकता है। Okay student, the next question which appeared in entrance exam. Okay, अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि sin थीटा प्लस कॉस थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है और लीस्ट वैल्यू क्या है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में आप देख सकते हैं इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है आपके पास, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है और लीस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है। तो जस्ट ग्रेटेस्ट के साथ नेगेटिव लगा देंगे तो लीस्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की जगह 1 लगाएं, बी की जगह भी 1 लगाएं, तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी that will be 1 square plus 1 square, that is square root 2, और अगर मैं इसके साथ नेगेटिव लगा दूंगा तो वो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी।
ओके, अब मैं अगर एक और एग्जांपल इसे पुट करता हूं, 3 sin थीटा -4 cos थीटा। तो आप इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। चलो मैं इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो ये आपके पास हो गया 3 cos के प्लस -4 cos के, 9 + 16 25, what is the square root of 25? 5. So with negative sign, this will indicate the least value. And very important point, sin square x plus cos square x always greater than equal to 2. cos square x plus sec square x सिंपल पूछा जाता है कि cos square x plus sec square x greater than equal to what? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये तीनों एक्सप्रेशन tan square x plus cos square x ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होते हैं, cos square x plus sec square x ग्रेटर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल के तमाम नंबर्स के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसके साथ कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको आने चाहिए। दैट इज tan 37 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, tan 56 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ये भी बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में भी, एमसीक्यूज में भी, और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। इसी तरह sin अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा। अगर प्लस लगा देंगे इधर तो इधर भी प्लस आ जाएगा। ओके, इन द एंड tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो यहाँ पे माइनस लगाएं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी तरह कॉट के लिए भी आपके पास फार्मूला मौजूद है। तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही फाइंड आउट किए गए हैं। और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? दैट इज cos अल्फा माइनस बीटा। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। So this is the end of this chapter. Hope you understand this chapter.